Hello friends, good morning and Jai Hind once again. I am here in front of you to deal a very important topic of the chapter body fluid and circulation. Student last time मैंने आपको blood के बारे में बताया था. We have discussed the various components of the blood. Clear? Now another fluid connective tissue is there inside our body, that is called as the lymph. Or you can say there is another circulatory system that is called as the lymphatic system. We have the blood circulatory system and the lymphatic system. Clear? So today I am just going to tell you something about the body fluid, or you can say the tissue fluid and the lymph. Clear? Student, you have idea that in the body of the human being, the blood flows through the closed channels called as the blood vessels. And blood vessels, you know, artery, vein and the capillaries. Clear? Or the wall of the capillaries, you can say this is very thin. बहुत ही thin होती है ना? And it remains embedded in between the tissues to supply the various substances. Clear? Like the nutrients like oxygen, like carbon dioxide, you can say, and it also takes the blood capillary also takes what, the excretory products. Clear? तो हम लोग बात करते हैं कि टिश्यू फ्लूइड होता क्या है ना? तो जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है थ्रू द कैपिलरीज, आप ध्यान दीजिएगा मैंने वर्ड यूज किया कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज हमारे टिश्यूज के बीच बीच में होती हैं. ठीक है, आप देखोगे मैं अलग कलर से बना के दिखाता हूं, है ना? इस तरह से कैपिलरीज है. क्लियर? दीज आर द कैपिलरीज और दीज आर द टिश्यूज. ये सेल्स हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? So from these capillaries the blood gets filtered, or you can say some part of the plasma it squeezes out. ठीक है, squeezes out, it comes out, है ना? And that is called as that fluid is called as the tissue fluid or the body fluid. ठीक है, यानी यहाँ पे सेल्स, टिश्यूज के सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है वहां पे जो फ्लूइड है that is called as the tissue fluid, or you can say the body fluid. क्लियर? और जब ये टिश्यू फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है देन दिस इज कॉल्ड एज द लिम्फ. सो बॉडी फ्लूइड एंड लिम्फ ये कोई अलग से अनोखी चीज नहीं होता है, सेम चीज है. क्लियर? कैसे बना बॉडी फ्लूइड? कैसे बना? ब्लड का प्लाज्मा ही ब्लड कैपिलरी से बाहर आ गया, है ना? एंड दैट पार्ट इट इज कॉल्ड एज द बॉडी फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड. And it lacks what? It lacks all the blood cells except WBC. क्लियर? यहां पे आप देखोगे तो RBC नहीं होती है, प्लेटलेट्स नहीं होते हैं. क्लियर? इट कंटेन्स सम WBCs. क्योंकि आप पढ़े हो, देयर इज अ टर्म आपने पढ़ा होगा डायपिडासिस, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डायपिडासिस. क्लियर? तो डायपिडासिस क्या होता है? जब मैं WBCs पढ़ा रहा था वहां भी मैंने बताया था कि WBCs जो अमीबॉइड होती है दे कम आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज. वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आती हैं अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए. ठीक है ना? एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द व्हाट? दे बिकम द पार्ट ऑफ द लिम्फ, और यू कैन से द बॉडी टिश्यूज और द फ्लूइड. सो यहाँ पे बॉडी टिश्यू और फ्लूइड क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे टिश्यूज के बीच बीच में क्या है? देयर इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. क्लियर? देयर इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ द blood through the blood capillaries and the wall of the blood capillaries is very thin. तो वहां पे आप देखोगे प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर चला आता है. क्लियर? इट कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज and that fluid which is remain between the cells of the tissues is called as the body fluid or the tissue fluid. आप देखो एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो क्या है? The fluid present in the spaces between the cells in the tissue is called as a tissue fluid. Clear? करता क्या ये? The exchange of material between the blood and the tissue cells occur through this fluid.
क्लियर, यानी आपको पता है कि यहां से ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगा, यहां पे आएगा, यहां से फिर क्या होगा, यहां जाएगा, यानी ब्लड से निकल के आया, इट बिकम द पार्ट ऑफ tissue fluid and then the cells which required oxygen they get it through the tissue fluid, और यहां सेल्स में जो CO2 बना वो बाहर आ गया और वो चला गया फिर वापस ब्लड में। तो ब्लड के और टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी टिश्यू और द बॉडी फ्लूइड। क्लियर, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, किसके बारे में, मैंने टिश्यू फ्लूइड के बारे में बताया। क्लियर, कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे बना, कि जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है कैपिलरीज के बीच बीच में, तो वहीं से वो फिल्टर हो जाता है, स्पेशली प्लाज्मा ही फिल्टर होके इट बिकम द पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। क्लियर, जो टिश्यूज के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वहां पे वो लिक्विड रहता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन। क्या होता है कंपोजिशन, टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। आप देखोगे इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा। मैंने पहले ही बताया था कि प्लाज्मा से ही बनता है, ये ब्लड प्लाज्मा से ही ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, सो कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा। क्लियर, एक्सेप्ट क्या, द प्लाज्मा कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स, इट कंटेन मोर प्रोटीन, है ना, बट द टिश्यू फ्लूइड हैज प्लाज्मा एक्सेप्ट RBC platelets, it contains some WBCs along with some amount of the protein. Clear, so it's written here the composition is similar to the plasma except blood cells and the plasma protein. Clear, यानी अगर आप ब्लड में और इसमें आप कंपेयर करोगे, if you will compare the composition of the lymph and the blood, तो आप क्या देखोगे, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी नहीं होती है। क्लियर, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, प्लेटलेट्स नहीं होते, यहाँ पे केवल प्लाज्मा का पार्ट है ना, और कुछ डब्ल्यूबीसी होती हैं और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। क्लियर, इसके अलावा जो मेन चीज होता है उसमें क्या है, मैंने बताया था कि वॉट एवर द मिनरल्स आर देयर विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ। आप देखो यहाँ पे डिसॉल्व मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, द टिश्यू फ्लूइड, और इसी को हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द डिसॉल्व मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लियर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड WBCs। डोंट फॉरगेट इट। अगर पूछता है कि कौन सी ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड कॉप्सल्स हैं, तो यू हैव टू से दैट द WBCs। आरबीसी नहीं होती, बार बार मैंने बोला, प्लेटलेट्स नहीं होते। क्लियर, फंक्शन क्या होता है टिश्यू फ्लूइड का, फंक्शन क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज द मिडिल मैन, है ना, ये बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। वहां से कोई चीज यहाँ आई, यहां से फिर वहां चली गई, यानी ब्लड से आई, टिश्यू फ्लूइड में मटेरियल से आया, यहां से फिर सेल्स में चला गया, फिर सेल्स में से कोई चीज बाहर निकली, उसके बाद फिर वो ब्लड में चली गई। तो ये बिचौलिए का काम कर रहा है, मिडिल मैन का काम कर रहा है। क्लियर, एंड इट कीप्स द टिश्यू सेल्स मॉइस्ट। क्लियर, इट कीप्स द टिश्यू सेल्स मॉइस्ट। क्लियर, और लिम्फ के बारे में अगर हम बात करते तो लिम्फ क्या है, लिम्फ वही चीज है जो बार बार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे हमारे इस टिश्यू फ्लूइड के बीच बीच में पतली पतली क्या होते हैं, पूरी बॉडी में पतली पतली जो होती है लिम्फ कैपिलरीज आर देयर, है ना, देयर आर सम लिम्फ कैपिलरीज। तो जब ये बॉडी टिश्यू हमारे लिम्फ कैपिलरी में चला जाता है तो दैट बिकम द लिम्फ, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। क्लियर, यानी हमारे बॉडी में एक और टिश्यू सिस्टम होता है, दैट इज द लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम, हम उसको बोलते हैं। मैं बता दूं क्या क्या है उसका पार्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक टिश्यू, क्लियर, और द लिम्फेटिक सिस्टम।
lymphatic system. Clear? Lymphatic system, that is it has the lymph. Clear? Then lymph capillaries, and lymph vessels, और जो चौथा होता है वो lymph node है, lymph nodes. Clear? So these are the part of our lymphatic tissue. ये क्या है? अनदर lymph क्या है? lymph के बारे में बात करें, lymph is the another fluid connective tissue. जैसे blood होता है वो that उसी तरह से the lymph is again a fluid connective tissue. Clear? lymph के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? lymph is the colorless motile fluid connective tissue. lymph क्या है? it's colorless है. Clear? मोटाइल है, मतलब इट कैन मूव, है ना. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? दिस इज अबाउट द लिम्फ. क्लियर? सो लिम्फ इट इज कलरलेस. याद रखिएगा, ब्लड और लिम्फ के बारे में डिफरेंस आता है तो आप बोलोगे ना कि लिम्फ इज कलरलेस, ब्लड इज रेड ड्यू टू द आरबीसी, and this is colorless because no RBCs are there, है ना. so lymph, the fluid present in the lymphatic vessels. Clear? the fluid present in the lymphatic system is called as the lymph. आप सीधे सीधे बोलो, lymph क्या है? the fluid present in the lymphatic system is called as the lymph. Clear? इसमें क्या क्या होता है? मैट्रिक्स है, यानी प्लाज्मा का पार्ट है, मैट्रिक्स है, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC है ना. मैं फिर से बता दूं अलग से थोड़ा सा, ल्यूकोसाइट्स इसमें होते हैं, ल्यूकोसाइट्स. और कौन से ल्यूकोसाइट्स? स्पेशल लिम्फोसाइट्स, क्लियर? स्पेशल लिम्फोसाइट्स है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी. क्लियर? ये किस लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. क्लियर? इम्यून response in the body. yani lymph is mainly responsible for enhancing the immunity of the body because lymph has lymphocytes which is a kind of WBC or the leukocytes. आप पढ़े हो, है ना. और lymph क्या करता है? lymph is the carrier for nutrient and hormones. ये NCERT में लिखा है. lymph क्या है? lymph is the carrier for hormones and nutrients. Clear? है ना. तो ये lymph का काम हो गया. ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, है ना, और जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है वहां पे ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. ठीक है? जहां पे ब्लड ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाता वहां पे लिम्फ लेके जाता है. क्लियर? देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन आवर बॉडी वेयर देयर इज नो एनी ब्लड वेसल्स. आर्टरी नहीं होती, वेन नहीं होती, तो वहां पे भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वहां की सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो कौन पहुंचाएगा? वहां पे न्यूट्रिएंट लिम्फ के थ्रू जाता है. क्लियर? सो द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी आई हैव कवर्ड. क्लियर? एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखी हुई है, माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए. फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ, है ना. आपको पता है कि जब हमारा डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन, तो you have idea that glucose and the amino acids they are absorbed and sent directly to the blood stream. लेकिन फैट जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, वो कभी भी ब्लड में नहीं जाता. वो पहले कहाँ जाता है? वो पहले लिम्फ वेसल्स में जाता है. कहाँ जाएगा? लिम्फ वेसल्स. एंड द लार्जर लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड एज द लैक्टियल्स. क्लियर? लैक्टियल्स, है ना, विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. क्लियर? जो इंटेस्टाइनल विलाई में होते हैं लैक्टियल्स, वो डाइजेस्टेड फैट उन्हीं में जाता है. किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स. क्लियर? काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में ये जाता है.
क्लियर? ये सारा आइडिया आप लोग को ऑलरेडी है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा था। क्लियर? तो ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, एनसीईआरटी के बाहर है, अबाउट द लिम्फ, है ना। तो लिम्फ और बॉडी फ्लूइड में कोई अंतर नहीं होता, सेम ही चीज होती है। जब लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ कैपिलरीज में बॉडी फ्लूइड जब चला जाता है तो उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, और जब वो टिश्यूज के बीच बीच में रहता है ना, स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में रहता है, तो हम उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या उसको हम लोग बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिम्फ के बारे में बताया, बॉडी फ्लूइड के बारे में बताया। अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंसेस, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, होम एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी नीट वगैरह में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लड, आप, मैं बोल रहा हूं, आप आराम से सुन के लिख लीजिए। ब्लड क्या है? रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? आरबीसी, हीमोग्लोबिन होता है। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। क्लियर? लिम्फ आप देखोगे, लिम्फ का जो फ्लो होता है इट ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि जितने भी लिम्फ वेसल्स होती है ना कहीं वो वेन्स को ज्वाइन करती हैं। क्लियर? जब हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, लिम्फ के सर्कुलेशन की बात करते हैं ना, तो जैसे ये जो वेन्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे जो बड़ी वाली वेन्स होती हैं, जो लार्जर वेन्स होती हैं, ठीक है ना, इसी से ये जो होता है, ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती है, लिम्फ वेसल्स जो होती है, जगह जगह ये ज्वाइन करती हैं। ठीक है, ये वेन है, दिस इज द वेन, और ये हमारा क्या है? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। क्लियर? तो यहां से जो भी लिम्फ होगा अल्टीमेटली इट बिकम द पार्ट ऑफ द क्या? ब्लड, यानी लिम्फ अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ द ब्लड। क्लियर? कैसे? क्योंकि ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, दे ज्वाइन द वेन्स, ये वेन को ज्वाइन करती है, और वेन से जो ब्लड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हार्ट की तरफ होता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो वो टुवर्ड्स द हार्ट एंड अवे फ्रॉम द हार्ट है, लेकिन जो लिम्फ का फ्लो होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? और अगर डिफरेंस की बात करो तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं, जबकि लिम्फ में केवल डब्ल्यूबीसी होती है, वो भी थोड़ी सी डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, है ना, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, है ना, दीज रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर? उसके बाद और डिफरेंस की हम बात करें तो प्रोटीन की बात करें तो ब्लड कंटेन मोर प्रोटीन, है ना, एंड लिम्फ कंटेन लेस प्रोटीन। क्लियर? So these are the basic differences between the blood and the lymph. Clear? So I hope that I am able to clarify the doubts related to the blood and lymph, and I have told you the content which are given in the NCERT related to the lymph. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, जो बेसिक चीज़ें लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दिया। Clear, my dear student? So you repeat this video 2 times 3 times and listen it properly, and you will be able to understand about the lymph and the body tissue or body fluid. Clear? So thank you very much. Very soon I will come with another video related to the another topic. Till then, goodbye.